Hello and welcome. Welcome to the fourth learning session of chapter number 1 of Science 1, which is gravitation. So far in this chapter, these are all the topics that we have covered so far, right? What is gravitation? It is an attractive force which pulls everything towards the center of the earth, right? Then we had looked at Newton's laws of motion. The first law said that any object in the state of rest or in the state of uniform motion in a straight line will remain to be in the state of rest or uniform motion in straight line unless and until it is acted upon by an external unbalanced force. That was your first law. Second law says that the force applied on an object is directly proportional to the rate of change of momentum. But what you need to remember is the formula for the second statement, or the formula from the which comes from the second law of motion of Newton, which is force is equal to mass into acceleration. Okay, so if I have an object in my hand and if I apply force on that object will get some acceleration, right? That you have to remember. What is acceleration? Acceleration is change in velocity. Okay, so if तुम्हारा speed धीरे धीरे increase हो रहा है, velocity धीरे धीरे increase हो रहा है, तो हम बोलेंगे accelerate कर रहा है. अगर तुम्हारा velocity धीरे धीरे कम हो रहा है, if it is decreasing slowly, then you will say it is decelerating. Acceleration का opposite या फिर negative acceleration. So you need to know what acceleration is. Okay, change in velocity is acceleration. So what does Newton's second law of motion say? Force is equal to mass into acceleration. अगर force लगाओगे तो acceleration होगा उस object का. Then the third law of Newton, third law of motion given by Newton, every action force has equal and opposite reaction force, and both the forces are simultaneous, right? So those were the three laws of motion given by Newton that we saw. Then we looked at Kepler's law. The first Kepler's law said that planets move around the sun in orbits of the shape which are in the shape of ellipse, right? Ellipse and not circle. And where is the sun? Sun is at one of the foci. What are foci that we had looked at when we were learning how to draw an ellipse on paper, right? We put those two pins and we put a thread around it and thread को stretch करके ellipse draw करते हो. तो दो पिन जहाँ पे रख रहे हो उसको focus बोलते हैं, right? It has two foci. So sun will be at one of those foci. That was your first Kepler's law. Second Kepler's law, the line joining the sun and the planet will sweep equal areas in equal amount of time. The third law, the square of time period. What is time period? The time it takes for a planet to revolve around the sun. एक चक्कर लगाने में कितना time लगता है उसको time period बोलेगा. So the square of time period of the planet is proportional to cube of the average distance between the sun and earth. Okay, that was your third law. Then we went and looked at Newton's universal law of gravitation. From that, we learned the formula, right? Formula for force of gravity. So F is equal to capital G, which is the gravitational constant, universal gravitational constant, into M1, M2. What is M1, M2? Masses of the two objects, and divided by R squared. What is R over here? The distance between the center of masses of the two objects, right? The distance between the center of masses of the two objects is R. So what is the formula? F is equal to capital G M1 M2 divided by R squared. That we had looked at in Newton's law of gravitation, Newton's universal law of gravitation. In that you need to remember the value of G, capital G, and the unit of capital G. Okay. And in the last learning session, we had looked at numerical problems based on gravitational force between two bodies. Right? We had looked at 4 problems. 2 of them were solved examples. 2 of them were end of chapter questions. Today, we are going to look at Earth's gravitational force. Till now, we are talking about universal gravitational law, right? उस law को तुम कहीं पे भी use करो. You can use it on Earth, Mars, Jupiter, some other galaxy, edge of the universe. Wherever you go, you can use universal law of gravity. It is applicable. Everything will work out. But today we will specifically talk about Earth's gravitational force. कि Earth का जो gravity है, उससे अलग-अलग Earth के ऊपर के objects को क्या affect हो रहा है. When we look at Earth's gravitational acceleration, I told you, right? Whenever there's a force, according to Newton's second law of motion, there will be an acceleration. So acceleration कितना है? Because of Earth's gravity. And variation in the value of g. Variation मतलब क्या है? This made from the word vary. Vary मतलब change होना. Okay? So कैसे change हो रहा है? क्या change हो रहा है? Value of g. So यहाँ पे हमने अब तक एक capital G देखा है, अभी यहाँ पे एक small g आ गया. Capital G is universal gravitational constant. Small g is acceleration due to gravity. We'll look at it in detail in the upcoming slides. Okay. So our objective for today will be
Students will be able to explain various phenomena using Earth's gravitational acceleration. For example, अगर पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो थोड़े टाइम के बाद नीचे क्यों आ जाता है, सो ऑन एंड सो। तो अलग अलग ऐसे जो फिनोमेना है, एवरीडे प्रोसेसेस है, उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए यूजिंग Earth's gravitational acceleration. Okay. And second objective, students will be able to explain variation in value of g. Okay. तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, अगर माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो क्या होगा, अगर तुम सैटेलाइट पे जाओगे तो क्या होगा, अगर तुम इफ यू डिग अ होल इनसाइड द अर्थ एंड इफ यू गो इनसाइड द अर्थ तो क्या होगा, दैट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन. ओके, so let us begin. We'll begin with a few very simple questions. Okay, will the velocity of a stone thrown vertically upwards remain constant or will it change with time? How will it change? अगर तुमने एक पत्थर फेंका सीधा ऊपर तो उसका वेलोसिटी सेम रहेगा या चेंज होते रहेगा, और अगर चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज होगा. नेक्स्ट, why does the stone move up all the time? Sorry, why doesn't the stone move up all the time? हमेशा ऊपर क्यों नहीं मूव करते रहता, थोड़े टाइम के बाद नीचे क्यों आ जाता है. Why does it fall down after reaching a certain height? एक certain height पे पहुंचने के बाद वापस नीचे क्यों आना शुरू कर देता है. And what does its maximum height depend on? कितना ऊंचा जाएगा और फिर वो वापस नीचे आना शुरू करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है. All of these are very simple questions, and you should be able to come up with the answers by yourself. Okay, so what I'm going to do is I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video, read all the questions and try to write the answers by yourself in your notebook, and then we will discuss the answers. Okay, we'll wait for 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. I hope you're done writing all the answers in your notebook. Okay, now let us discuss the answers. The velocity of a stone thrown vertically upwards decreases with time till it becomes zero. तो जैसे ही तुमने एक पत्थर को ऊपर फेंका, सीधा ऊपर फेंका, तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने वाला है जब तक वो जीरो नहीं हो जाता. When the stone is thrown vertically up, it is acted upon by the gravitational force of the earth, which constantly tries to pull the stone down. जब हम पत्थर को सीधा ऊपर फेंक रहे हैं तो उस पर क्या एक्ट करने वाला है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हमेशा नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है. ड्यू टू द कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल, द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन बिकम्स जीरो आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट. क्योंकि उसको बार बार हर पॉइंट पे, हर सेकंड पे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की नीचे खींच रही है, इसलिए इसका वेलोसिटी कम कम होते जाएगा और किसी पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगा. तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा जब तक वो एक सर्टेन हाइट पे नहीं पहुंच जाता. Once the velocity becomes zero, the gravitational force acting on the stone causes it to start moving vertically downwards. Okay, तो एक बार अगर जीरो हो गया उसका वेलोसिटी, तो अभी भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स गायब नहीं हो गया वो जीरो होने के बाद उसका स्पीड. तो उसका स्पीड जीरो होने के बाद फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे ही खींच रहा है, इसलिए फिर बाद में स्पीड जीरो होने के बाद धीरे धीरे वो नीचे आना शुरू करेगा. ओके, the maximum height of the stone can achieve the maximum height the stone can achieve depends on the initial velocity with which the stone is thrown vertically upwards. Okay, starting में क्या velocity है. So जब वो पत्थर तुम्हारे हाथ को छोड़ रहा है, तुम ऊपर फेंक रहे हो, right? So when that stone is leaving your hands, तब उसका velocity क्या, उसको initial velocity बोलेंगे. Initial यानी पहले कितना velocity था, right? तो starting में कितना velocity उस पर depend करेगा how high it will go, what will be its maximum height. अगर बहुत fast throw किया पत्थर को, then it will go on a इट विल बी हायर, इट विल गो हायर. वैसे अगर बहुत जोर से थ्रो नहीं किया, काफी स्लो थ्रो किया, तो इतना हाई नहीं जाएगा. ओके, काफी कम हाइट पे वो आके रुक जाएगा. So that was the answer. I know that most of you already knew the answers to all these questions, but were you able to write all of it so clearly in point-wise form? That you have to check. Okay, answer most of you already knew, but can you all write that answer down neatly, clearly in simple language in point-wise form in a neat answer? Because at the end of the day, तुम्हें marks understanding के नहीं मिलने वाले, तुम्हें marks answer लिखने के मिलने वाले. So you need to have that habit of writing whatever you already know clearly, precisely in simple language in point-wise form. Okay, so that skill you need to develop, and you will get more chances to develop that skill in today's learning session as well. Okay, the more you practice, the better you will get at it. Let's move ahead. Another use your brain power type of question. We have already discussed the answer to this question, but again, what we're going to practice is, can you write it down in point-wise form, so that
whoever is reading it understands it very easily, and if it's an exam, then can you get marks based on that answer? Okay. According to Newton's law of gravitation, every object attracts every other object. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, हमने ऑलरेडी पढ़ा. Thus, if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. This also we have seen in the last to last learning session, right? जब एप्पल नीचे गिर रहा है तो एप्पल पे अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एफ आएगा, वो सेम फोर्स अर्थ के ऊपर आएगा एप्पल की वजह से, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल लगता है, राइट? सो अर्थ एप्पल को जिस फोर्स से नीचे खींच रहा है उसी सेम फोर्स से एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, राइट? Why then does the apple fall towards the earth, but the earth does not move towards the apple? एप्पल अर्थ के ऊपर गिर जाता है बट अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं जाता? I've already discussed the answer with you. That's because of the mass of earth. Okay, बट मास अगर अर्थ का ज्यादा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मास तो मास ज्यादा रहने दो, इतना बड़ा मास एप्पल की तरफ मूव हो सकता है, राइट? सो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट? That you have to find out and try to write the answer in point wise form. Try to write your answers in 4 points. Okay, and explain, go deeper. अच्छा, अर्थ का मास ज्यादा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई लॉ वायलेट होने वाला है क्या? ये इसके बारे में तुम्हें सोचना है, and try to figure out the answer and put it in 4 neat and simple points. Okay, and if you are unable to do it, don't worry, you're getting practice, right? So when you actually see the correct answer, you can enhance your answer. You can make sure that next time onwards you don't make the same mistakes again. Okay. Okay, I hope you pause the video and are ready with at least 2-3 points explaining the answer. Now let us look at the answer. Okay. The apple attracts the earth with the same force with which the earth attracts the apple. तो एक्चुअल में हो क्या रहा है वो पहले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया. For same magnitude of force, the acceleration produced in a body is inversely proportional to its mass. इसका मतलब क्या है? See, Newton's second law of motion says force is equal to mass into acceleration, right? तो तुम्हें सिर्फ acceleration find out करना है. तुम इस mass को LHS में ले लोगे, तो यहाँ पे mass acceleration के साथ multiply हो रहा है, LHS में लेने के बाद force से divide हो जाएगा, right? Force को divide करेगा वो. So m जो यहाँ पे multiply हो रहा है वहां पे जाके divide हो जाएगा, तो acceleration is equal to force divided by mass आ जाएगा. तो ये यहाँ पे लिखा है acceleration is equal to force divided by mass. तो इसका मतलब क्या है? देखो, acceleration न्यूमरेटर में है, मास डिनोमिनेटर में है, यानी वो लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? अगर मास इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, अगर मास डिक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, हमेशा उल्टा होगा. एक चीज बढ़ गई तो दूसरी चीज कम हो जाएगी. ये किसके बारे में बात करें? एक्सेलरेशन एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यही हमने लिखा है सेकंड पॉइंट पे. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. ओके, सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया. सो हमने किससे कनेक्ट किया? सिर्फ मास ज्यादा ये बात नहीं करना है, मास को हमने एक्सेलरेशन के साथ कनेक्ट किया. दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑफ योर, कि तुम लोग एक स्टेप डीपर जा सकते हो क्या, और थोड़ा सोच सकते हो कि अगर मास ज्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है. सो यू हैव टू कनेक्ट इट टू एक्सेलरेशन. As the mass of Earth is very large compared to that of the apple, the acceleration of Earth is too small compared to acceleration of apple that cannot be noticed. Okay, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन को क्या होगा? जितना ज्यादा मास उतना एक्सेलरेशन कम. सो क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, एक्सेलरेशन बहुत कम होगा. ओके, इट विल बी टू स्मॉल एंड इट कैन नॉट बी नोटिस्ड. ऑल्सो नोटिस कि उन्होंने टू स्मॉल बोला है, जीरो नहीं बोला है. तो अर्थ को एक्सेलरेशन मिलता है, ओके, एंड अर्थ मूव्स वेरी लिटिल, बट वो इतना कम मूव होता है दैट इट कैन नॉट बी नोटिस्ड बाय अस. हम लोग उसको नोटिस नहीं कर पाते. ओके, दैट्स व्हाट आई हैड एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट टू लास्ट लर्निंग सेशन. And finally we'll put conclusion. Hence the apple falls towards the earth while the earth does not move towards the apple, right? तो इस तरीके से तुम्हें अपना जो आंसर है 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने आना चाहिए. यू शुड बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन में फर्क पड़ेगा, एक्सेलरेशन को क्या होगा? एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन बहुत कम हुआ तो क्या होगा? हम लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे. सो यू शुड बी एबल टू लॉजिकली एक्सप्लेन योर पॉइंट्स इन अ सिंपल लैंग्वेज. ओके, so that was your answer, and it's okay if you are not able to do this in your first attempt. The more you practice, the better you'll get. And hence, whenever I ask you to pause the video and try to write the answer by yourself, you should always pause the video and try to write the answer by yourself. Only then you will develop the skill. The more you practice, the better you will get at it. Okay, let's move ahead.
Earth's gravitational force. The gravitational force due to Earth also acts on the moon, because of which it revolves around the Earth. Okay, this again we had seen in the first learning session, right? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे भी एक्ट करता है, उसकी वजह से मून हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. रिवॉल्व करना यानी चक्कर लगाना. ओके, मून रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ, यानी अर्थ के आजू बाजू मून चक्कर लगाता है. सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ. ओके, तो हम लोग जो सैटेलाइट्स भेजते हैं ऊपर, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह, ये लोग भी अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटिंग? ऑर्बिटिंग मींस चक्कर लगाना. तो आर्टिफिशियल अर्थ पे भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है और उसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है. द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ. The earth attracts them towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall on the earth. Why? Okay. Um, so देखो, एप्पल के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है तो एप्पल नीचे गिर जा रहा है, बट मून के ऊपर भी तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मून नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? या फिर हम लोग जो सैटेलाइट्स भेजते हैं ऊपर स्पेस में, उनके ऊपर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो लोग नीचे क्यों नहीं गिर रहे? एप्पल नीचे गिर रहा है, बट मून एंड सैटेलाइट नीचे नहीं गिर रहे. ऐसा क्यों हो रहा है? That's what they are asking. So I'll read out the answer which is given in 2 points and then I'll explain it. Okay. This is because the velocity of the moon and the satellites along their orbits. If this velocity was not there, they would have fallen on the earth. Okay. So let me explain this point in detail. Okay. So what they are saying is it is because of the velocity. Now say for example you are on the earth, okay, और तुमने एक बॉल हॉरिजॉन्टली फेंक दिया. तो तुमने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका तो थोड़ा दूर जाएगा. ओके, दिस इज योर बॉल और तुमने इसको इस तरफ फेंका तो थोड़ा दूर जाके सब नीचे गिर जाएगा. राइट, समझो तुमने और जोर से फेंका, बहुत ज्यादा जोर से फेंका, तो और दूर जाके फिर बाद में वो नीचे आएगा. राइट, अगर तुमने धीरे फेंका, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा, ज्यादा वेलोसिटी नहीं दिया बॉल को, तो थोड़ा सा आगे जाके नीचे गिर जाएगा. तुमने और थोड़ा वेलोसिटी दिया, और थोड़ा आगे जाके नीचे गिरेगा. बहुत ज्यादा वेलोसिटी दिया तो बहुत आगे जाके नीचे गिरेगा. तो समझो तुमने एक मशीन लगा दिया. ओके, मशीन के पीछे तुमने एक मिसाइल लगा दिया. ओके, मशीन है, मशीन के पीछे मिसाइल है, बॉम्ब्स है, सब कुछ है, और उस सब कुछ तुम्हारे बॉल के पीछे अटैच्ड है, यानी बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा. तो इतना अगर तुम ज्यादा फोर्स से अगर बॉल को फेंकोगे और समझो अर्थ का जो एयर है वो गायब हो गया 2 सेकंड के लिए, तो क्या होने वाला है? बॉल आगे जाते रहेगा, वो नीचे गिरेगा ही नहीं, आगे जाते रहेगा. ऐसा अर्थ का पूरा चक्कर लाके तुम्हारे पीछे वापस आ जाएगा. तुमने बॉल ऐसे सीधा आगे फेंका है, तो इतना जोर से अगर तुमने फेंक दिया तो पूरा अर्थ का चक्कर लाके वापस पीछे से तुम्हें हिट करेगा. राइट, समथिंग सिमिलर हैपेंस विद द मून एज वेल. ओके, मून नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि मून का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, साइडवेज वेलोसिटी. ओके, सो इफ दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर मून, तो मून को भी नीचे गिरना है. ओके, बट मून का क्या है, नीचे गिरने से पहले उसके पास वेलोसिटी इतना है, क्यों आगे चला जाता है. भी यहाँ पे भी उसको नीचे गिरना है, बट उसका वेलोसिटी इतना ज्यादा है, क्यों आगे चला जाता है. इसको भी यहाँ नीचे गिरना है, बट वेलोसिटी ज्यादा है तो आगे चला जाता है. तो ऐसे आगे चले जाता है और नीचे गिरता ही नहीं है. व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है. ओके, इसका वेलोसिटी नहीं होता, से फॉर एग्जांपल कल फॉर सम रीजन मून का स्पीड कम होने लग गया, मून का वेलोसिटी कम होने लग गया, तो क्या होने वाला है? वो जो मून है जो इस तरीके से ऑर्बिट करे, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम होते जाएगा और धीरे धीरे अर्थ की तरफ आते जाएगा, और एट द एंड someday it is going to crash in the earth. Okay, similar thing happens with artificial satellites. जो satellites हम लोग स्पेस में भेजते हैं, उनका कुछ टेन्योर होता है, राइट, कि ये लोग 10 साल के लिए ऑपरेशन रहेंगे, इसमें जो फ्यूल है वो सिर्फ 20 साल के लिए है, या फिर जो प्रोजेक्ट है ये 30 सालों के लिए वगैरह वगैरह. सो आफ्टर 20-30 ईयर्स वो लोग सैटेलाइट को ऑपरेट करना बंद कर देते हैं. राइट, तो सैटेलाइट भी क्यों घूम रहा है अपने ऑर्बिट में? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है, उसमें जो फ्यूल वगैरह है उसकी वजह से उसके पास वेलोसिटी है. जिस दिन इसका वेलोसिटी कम हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, तो उसका स्पीड कम होएगा, और जैसे उसका स्पीड कम हो गया वो पास आके फिर बाद में अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्रैश हो जाएगा. बहुत सारे सैटेलाइट्स ऐसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्रैश हो जाते हैं और जल जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करने के बाद, जब उनका सर्विस पीरियड खत्म हो जाता है. ओके, अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू नो. Okay, let's move ahead. Think about it on page number 8. Okay, what would happen if there was no gravity? And what would happen if the value of capital G, universal gravitational constant, was twice as large? So think about the question. So I'm not going to give you the answer. अगले slide पे इसका answer नहीं है. What I want you to do is type your answers in the comment section.
Okay, and these are very interesting questions, and it does not have any one right answer. What would happen if there was no gravity? I can think of at least 10 answers right now, 10 different answers. You all might think some other points, other things which might happen if there is no gravity. Similarly, if the value of capital G is double, तो क्या क्या हो सकता है? There are so many correct answers. Well, think about it by yourself कि क्या क्या हो सकता है, and after thinking क्या क्या हो सकता है, put those points in the comment section of this video. Okay, and also I want to encourage you all to please put your answers in the comment section of any video when I ask you to. See, online learning has been difficult for you all. I acknowledge that. I understand that. तुम लोग के लिए काफी मुश्किल है ऑनलाइन लर्निंग. मेरे लिए भी काफी मुश्किल है ऑनलाइन लर्निंग because this is new to me as well. But whatever we can do to make us feel like a class, जो भी हम लोग कर सकते हैं ताकि हमें क्लास की फीलिंग आ जाए, वो हमें करना चाहिए. So I think comment section is a place where we can feel like a class. Okay. For the last few videos, I'm seeing that very few people are commenting in the comment section of my videos when I'm asking them to. But if everyone starts commenting in the comment section of any video, you will feel like a class. You can see, अच्छा मेरे दोस्त ने क्या बोला है, मेरे दुश्मन ने क्या बोला है, मेरे को जो पसंद है उसने क्या बोला है, मेरे को जो ना पसंद है उसने क्या बोला है. You can read each other's answers. You can reply to each other's answers. You can say कि अच्छा तुम्हारा ये point मुझे बहुत अच्छा लगा, या फिर मुझे ये point तुम्हारे आंसर में ऐड करना है, या फिर you can say okay मुझे ये point तुम्हारा गलत लग रहा है for so and so reason respectfully. And I think we can feel like a class again in the comment section. अगर तुम, if you are the first person who is answering, तुम्हारा आंसर हर कोई रीड करेगा, and if you are the last person who is answering, you get to read each and everyone's answer. So I think comment section is an important section for us on YouTube where we can feel like a class. We can read each other's answers, we can help each other, and we can engage with each other. Okay, so make sure you are thinking about this question and putting down your thoughts in the comment section. Okay, let's move ahead. अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अब तक हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे, अब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं. ओके, so the earth exerts gravitational force on objects near it, we know that. According to second law of Newton's second law of motion, a force acting on a body results in acceleration. न्यूटन का सेकेंड लॉ के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स है तो उस पे एक्सेलरेशन आने वाला है. Thus, the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration. इसलिए अर्थ के ऊपर कोई भी बॉडी होगा, उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. तो ये जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको किस लेटर से डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल जी. एंड इट्स इजी टू गेट कंफ्यूज बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. ओके, कैपिटल जी एक कांस्टेंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में. स्मॉल जी एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, इनके इनके यूनिट्स भी अलग होंगे. कैपिटल जी का यूनिट क्या है? थिंक इट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट? दैट इज स्मॉल जी. स्मॉल जी इज एन एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है? वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. नेक्स्ट, they are saying that acceleration is a vector. Do you remember vector quantities, scalar quantities? I think in the first or the second chapter of grade 9 science we had learned this. Scalar quantities and vector quantities. Scalar quantities यानी सिर्फ नंबर होगा, डायरेक्शन नहीं होगा. वेक्टर क्वांटिटीज यानी नंबर भी होगा, डायरेक्शन भी होगा. सो ग्रेविटी हैज अ डायरेक्शन. व्हेन यू से कि द वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेन इज सो एंड सो, तो सिर्फ नंबर नहीं दे सकते. 500 किलोमीटर पर आवर, तुम्हें बोलना पड़ेगा 500 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द साउथ, तुम्हें डायरेक्शन भी देना पड़ेगा. सिमिलरली एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन के पास भी डायरेक्शन होगा. तो जब भी तुम एक्सेलरेशन की बात करोगे, ओके, दिस ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तुम्हें सिर्फ उतना बोल के नहीं चले, किस डायरेक्शन में ये भी बताना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी है. As the gravitational force on any object due to earth is directed downwards, sorry, not downwards, towards the center of the earth, the direction of acceleration due to gravity is also directed towards the center of the earth, that is vertically downwards. So say for example I have an object in my hand, okay, and I अप्लाई सम फोर्स ऑन इट. अभी फोर्स मैंने कहां से अप्लाई किया? इस साइड से अप्लाई किया, राइट? तो अगर मैं इस साइड से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन, सॉरी, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? उस तरफ. मैं इस तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स का डायरेक्शन क्या है? उस तरफ.
तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी वहां पे होगा। सो ये जो फोर्स है और जो एक्सेलरेशन है दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, राइट। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के से जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसका भी डायरेक्शन कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, ओके। और जब तुम सरफेस पे खड़े हो तो तुम्हें क्या लगे, इट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ओके। दैट वाज योर लास्ट पॉइंट। Let us see how to calculate the value of g. Okay, small g, which is acceleration due to gravity, उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। So we'll begin with our universal law of gravitation given by Newton. Gravitational force is equal to capital G, universal gravitational constant, multiplied by m1 m2 divided by r squared. यहाँ पे m1 क्या ले लिया है, mass of earth, capital M क्या है, mass of earth. What is small m? Small m is the mass of the object on an earth, on the earth, okay. अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका मास हम स्मॉल m ले रहे हैं, एंड देन r स्क्वायर। ऑल्सो न्यूटन सेकंड लॉ सेज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन की यहाँ पे g डाल दिया, व्हाई, बिकॉज आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल g, सो स्मॉल a की जगह पे स्मॉल g डाल दिया, ओके। नाउ व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, दोनों का LHS सेम है, यहाँ पे भी फोर्स है यहाँ पे भी फोर्स है, राइट। सो बोथ ऑफ देम हैव देयर LHS इक्वल, so that RHS will also be equal. So you will equate their RHS. So from 3 and 4 you will say mg, which is over here, is equal to gmm by r square. यहाँ पे आ गया, okay. Now what is common over here, यहाँ पे भी small m है यहाँ पे भी small m है, so ये दोनों cancel हो जाएंगे, right? Divide both sides by small m. So यहाँ पे m cancel हो जाएगा, यहाँ पे m cancel हो जाएगा, तो मैं क्या मिलेगा, g is equal to gm by r square. So यहाँ पे देखो small g is equal to gm by r square. Now capital G का वैल्यू हमें पता है, the universal constant. कैपिटल M का वैल्यू भी हमें पता है, द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ हमने बाय हार्ट किया, राइट, इट इज 6 into 10⁻24 kgs. यहाँ पे स्मॉल आर के यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर के यहाँ पे क्या आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। एंड ऑब्जेक्ट समझो अगर तुमने सरफेस पे रखा है अर्थ के, तो अर्थ का जो रेडियस होगा दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, राइट। सो यहाँ पे स्मॉल आर का कैपिटल आर कर दिया, कैपिटल आर यानी radius of earth, okay. capital M is mass of earth, capital R is radius of earth. radius of earth क्यों लिया, क्योंकि अगर सरफेस पे रखा हमने ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सरफेस विल बी द रेडियस, क्योंकि हमारा अर्थ स्फेरिकल शेप में है। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूट, राइट। कैपिटल G का वैल्यू हमें पता है 6.67 into 10⁻⁻11, कैपिटल M का वैल्यू पता है 6 into 10⁻24 kgs, कैपिटल R का वैल्यू भी पता है 6.4 into 10⁻6 meters, the whole square, क्योंकि यहाँ पे r square है। So when you calculate all this, you get answer as 9.77 meter per second square. Note the unit, okay? Meter per second square. Meter per second is velocity. Meter per second square is acceleration. G क्या है? Acceleration due to gravity. तो इसका unit भी acceleration वाला होगा. तो इसको जनरली हम 9.8 लेते हैं, क्योंकि लास्ट जो नंबर इसको कट करके 7 को 8 कर देते हैं. So we generally take this as 9.8 meter per second square. You need to remember this value, okay? Acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, okay. This acceleration depends only on mass m, which is mass of earth, radius r, which is the radius of earth, and so acceleration due to gravity at any given point on the earth is same for all objects, okay. तो अगर समझो मैंने यहाँ पे अपना एक I have this object and I have this object, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे acceleration due to gravity exact same रहेगा, क्योंकि इन दोनों के मास पे डिपेंड नहीं करता। किन दो चीजों पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसके मास के ऊपर, इसके रेजिस्टेंस के ऊपर, इसके वेलोसिटी के ऊपर, किसी के ऊपर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, ओके। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। उसका वॉल्यूम क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, उसका वेट क्या है, उसका मास क्या है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। सारे ऑब्जेक्ट्स पे सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। दैट आल्सो यू नीड टू keep in mind, okay. Now we are moving into the next topic, which is variation in value of g. ये जो small g है या फिर acceleration due to gravity है, ये अर्थ पे अलग अलग जगह पे जाओगे तो सेम रहेगा क्या? That's the question they've asked in the first point, right? Will the value of g be the same everywhere on the surface of earth? And the answer is no. इसलिए तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। So value of g अर्थ पे अलग अलग जगह पे जाओगे तो एग्जैक्ट सेम नहीं होगा।
सेम पॉइंट पे सेम होगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स है, अभी ये दोनों सेम जगह पे हैं, दोनों चेंबूर में रखे हैं मैंने, तो दोनों अगर चेंबूर में रखे हैं मुंबई में, तो दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा। ओके, बट समझो एक ऑब्जेक्ट को मैं लेके गया नॉर्थ पोल पे, दूसरे ऑब्जेक्ट को लेके गया मैं अफ्रीका में, तो सेम नहीं रहेगा। ओके, सो कहाँ पे हो उस पर डिपेंड करेगा। सेम जगह पे दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, उस पर एग्जैक्ट सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उनका पोजीशन चेंज किया अर्थ पे अलग अलग जगह पे जा रहे हैं तो सेम नहीं रहेगा। सो फर्स्ट ए बी सी तीन पार्ट्स है उसके। ओके, तो फर्स्ट इज चेंज अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अलग अलग पार्ट्स ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ पे जाओगे तो कैसे चेंज होगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, हर जगह पे सेम क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीजन क्या है। द रीजन इज दैट शेप ऑफ अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। ओके, हम लोग स्फीयर बोलते हैं, बॉल के शेप में अर्थ है, बट इट्स एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है वो। ये आई थिंक वी हैड डिस्कस इन द फर्स्ट लर्निंग सेशन एज वेल। So the distance of a point on a surface of the earth from its center differs somewhat from place to place, क्योंकि एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, तो इस पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, कम ज्यादा होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं रहता। अगर परफेक्ट स्फीयर होता तो किसी भी पॉइंट पे जब सरफेस पे उसका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल हो जाता, बट क्योंकि वो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, तो यहां से थोड़ा पास में होगा, यहां से थोड़ा दूर होगा, इसलिए वो चेंजेस आ सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। क्या चेंज है हमारे शेप में, ड्यू टू इज रोटेशन अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैटर एट द पोल्स। ओके, अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट, बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग दिस वे, तो ये जो साइड का चीज है, ओके, विच इज इक्वेटर, वो बल्ज होता है। बल्ज होना यानी बल्जेस एट द इक्वेटर, बल्ज होना यानी जाड़ा हो जाना। ओके, क्यों इस तरीके से रोटेट कर रहा है, सेंटर का जो पार्ट है वो जाड़ा हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा, एंड इट इज फ्लैटर एट द पोल्स, क्योंकि अभी बीच में से जाड़ा हो रहा है, वो कहीं से तो आना चाहिए, राइट, मास, तो ऊपर से फ्लैट हो जाता है, तो ऊपर से फ्लैट, बीच में से जाड़ा, ऐसा है हमारा अर्थ का शेप। रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल्स, क्योंकि अभी बीच में से जाड़ा है, तो यहाँ पे रेडियस बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट रेडियस इक्वेटर पे होगा, और ऊपर से चपटा है, तो ऐसा वर्टिकल रेडियस सबसे कम होगा, राइट, ऊपर से चपटा है तो यहाँ का रेडियस कम हो गया, बीच में से जाड़ा है तो इसका रेडियस ज्यादा हो गया। ओके, सो इट इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेडियस इज एट द इक्वेटर एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेडियस इज एट द पोल्स, तो इसलिए value of G is thus highest 9.832 meter per second square at the poles and decreases slowly with we come towards the equator, और equator में lowest क्या है 9.78 meter per second square। okay, so poles पे रेडियस कम है, रेडियस कम है तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ ये क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि अभी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ कम हो गया, इसलिए पोल्स पे वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होगा। जितना पास में होते हैं ऑब्जेक्ट्स उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे रेडियस छोटा है तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर कम है, इसलिए एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सो पोल्स पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, वेयरएज इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, सेंटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, राइट, सो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए उतना कम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो हाईएस्ट पोल्स पे ये वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, और सबसे कम इक्वेटर पे होता है विच इज 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, so this is how value of G changes along the surface of the earth, अलग अलग एरियाज पे, अलग अलग पॉइंट्स पे सरफेस ऑफ अर्थ के अलग अलग वैल्यू हो सकता है G का। ओके, नेक्स्ट इज B which is change with height। ओके, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज हो गया तो उसके हिसाब से एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे चेंज होने वाला है। ओके, हाइट यानी क्या, अगर समझो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे एप्पल को पकड़ा तो उस पे एक्सेलरेशन कितना होगा, फिर मैं 7th फ्लोर पे चला गया तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, समझो मैं माउंट एवरेस्ट पे चला गया तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हाइट से क्या फर्क पड़ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। As we go above Earth's surface, the value of R in equation 5 increases and the value of G decreases। तो हमें equation 5 पता है, राइट, कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो R स्क्वायर हमने क्या लिया था, रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट, अगर सरफेस पे होगा अर्थ के तो रेडियस ऑफ द अर्थ होगी, बट अगर तुम हाइट पे जाओगे तो रेडियस ऑफ अर्थ में हाइट ऐड करना पड़ेगा, राइट, तो जितना ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट उतना उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीज हो रहा है। तो अगर समझो R इंक्रीज हो गया तो G क्या होगा, इंक्रीज होकर डिक्रीज, अगेन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो जब भी ऐसा होता है तो अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो G कम होने वाला है। ओके, सो एज यू मूव अप, एज तुम्हारा हाइट इंक्रीज हो रहा है
तुम्हारा वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होने वाला है. ओके. However, the decrease is rather small for heights which are small in comparison to the Earth's radius. Okay, अगर बहुत ही कम इंक्रीज हुआ डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला वैल्यू में. वी कौन डिसाइड करेगा कितना कम है कितना ज्यादा है? तो अर्थ का रेडियस डिसाइड करेगा. अर्थ के रेडियस से कंपेयर करना पड़ेगा. ओके. फॉर एग्जांपल, remember that the radius of the earth is 6,400 kilometers. Okay, if an aeroplane is flying at a height of 10 kilometers above the surface of the earth, its distance from the Earth's surface changes from 6,400 kilometers to 6,410 kilometers, and the change in the value of g due to this is negligible. Okay, so बहुत ज्यादा हाइट इंक्रीज हुआ तो ही फर्क पड़ेगा. ओके, फर्स्ट फ्लोर से 10 फ्लोर पे जाओगे तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला. इनफैक्ट अगर तुम प्लेन पे रहोगे, प्लेन कितना ऊपर उड़ता है? 10 किलोमीटर ऊपर उड़ता है सरफेस के. तो वो 10 किलोमीटर ऐड हो जाएगा हमारे रेडियस ऑफ अर्थ में. रेडियस ऑफ अर्थ है 6,400 किलोमीटर, उसमें कितना ऐड हुआ? सिर्फ 10 ऐड हुआ. तो 6,004 में अगर 10 ऐड हुआ तो हार्डली कुछ फर्क पड़ा, राइट? बहुत कम चेंज आया. 6,400 का 6,410 हो गया, बहुत छोटा चेंज आ गया. तो इसके वजह से जो जी के वैल्यू में चेंज होने वाला बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. ऑन दी अदर हैंड, व्हेन वी कंसीडर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो सैटेलाइट्स हम लोग भेजते हैं स्पेस में, उसको अगर कंसीडर कर लिया जो हमारी अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं और विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ, वी हैव टू टेक into account the change in the value of g due to the large change in distance of the satellite from the center of the earth. So अगर एरोप्लेन को तुम कंसिडर करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. एरोप्लेन में जो लोग बैठे हैं और जो ग्राउंड पे बैठे हैं, उन दोनों के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कुछ फर्क नहीं होगा, बहुत कम फर्क होगा. अगर तुम सैटेलाइट्स को कंसिडर कर रहे हो तो काफी फर्क पड़ सकता है. ओके, सो हियर वी हैव अ टेबल व्हिच एक्सप्लेन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस. तो अगर सरफेस पे होगे तो 9.8 होगा, माउंट एवरेस्ट पे चले जाओगे फिर भी 9.8 ही रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय मैन मेड बलून. ओके, सो जो बलून्स पे जाते हैं, बलून्स को वो लोग एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, उसका हाइट था 36 किलोमीटर. ओके, सरफेस से 36 किलोमीटर ऊपर चला गया था वो बलून जो इंसान ने बनाया था. वहां पे थोड़ा सा कम हो गया, देखो 9.8 का 9.77 हो गया, तो एकदम हल्का सा चेंज हो गया 36 किलोमीटर पे भी. हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट. ओके, वेदर को चेक करने के लिए जो सैटेलाइट्स होते हैं उसका हाइट होता है अराउंड 400 किलोमीटर. सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर जाके वो रिवॉल्व करने वाला अर्थ के आजू बाजू. तो उसमें भी और थोड़ा सा चेंज आ गया. ओके, 9.8 जो एवरेज है उससे 8.7 हो गया. कम्युनिकेशन सैटेलाइट में बहुत फर्क पड़ रहा है. देखो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं वो 35,700 ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं. तो अर्थ का रेडियस क्या है? 6,400 किलोमीटर, और ये कितना है? 35,700 किलोमीटर. तो बहुत फर्क पड़ गया. 6,400 किलोमीटर में 35,000 ऐड किया या फिर 36,000 ऐड किया तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा. तो यहाँ पे देखो 9.8 से डायरेक्टली 0.2 हो गया. तो तुम कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे खड़े रहोगे, तुम्हारे लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो होगा. ऑलमोस्ट जीरो है ना, 0.2 यानी बहुत ही कम है. तो तुम लोग ऑलमोस्ट वेटलेस फील करोगे. ओके, सभी अलग अलग जगह पे कितना चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो इस टेबल में पता चल रहा है. ओके, सो जस्ट रीड दिस टेबल एंड सी, मेक कनेक्शंस, कितना हाइट में कितना फर्क पड़ने वाला है. ओके, so that is how. Okay, we have one more slide. No, we don't have one more slide. So that is how value of g changes with height. Okay, तो पहले हमने क्या देखा कि सरफेस पे अलग अलग जगह पे जाओगे तो वैल्यू ऑफ जी कैसे चेंज होगा. सेकंड, बी में हमने क्या चेक किया कि हाइट अगर इंक्रीज डिक्रीज किया तो क्या चेंज होने वाला है वैल्यू ऑफ जी में. भी लास्ट जो है सी, चेंज विद डेप्थ. अब तक तो हम ऊपर जा रहे थे, अभी नीचे जाना शुरू किया तो क्या होगा? क्योंकि हमने एक खड्डा खोद दिया और तुम लोग अंदर जा रहे हो अर्थ के, तो उससे वैल्यू ऑफ जी में क्या फर्क पड़ने वाला है. द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ. द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 डिक्रीजेस एंड वन वुड थिंक दैट वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला. देखो, अगर तुम नीचे जाने लग गए अर्थ के तो तुम्हारा जो ये आर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि तुम अर्थ के रेडियस के अंदर जा रहे हो, राइट? तो तुम्हारा जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कम हो रहा है, राइट? जैसे तुम अर्थ के अंदर जा रहे हो, योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज रिड्यूसिंग, तो तुम लोग का आर कम हो जाएगा. अभी आर कम हो गया तो ग्रेविटेशनल सॉरी ये जो जी है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो आर कम हुआ तो जी इंक्रीज हो गया, यानी हम जब भी अंदर जाएंगे तब जी का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा तुम्हें लगेगा, बट ऐसा होगा नहीं.
यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है. ओके. However, the part of Earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases. इसका मतलब क्या है? Let me increase the size. Okay. तो अभी तुम लोग ने एक खड्डा खोद दिया. You have dug a hole inside the Earth's crust और तुम लोग अभी नीचे जा रहे हो. तो तुम लोग नीचे जा रहे हो तो तुम लोग सेंटर ऑफ द अर्थ के और पास में हो. जितना पास में जाओगे सेंटर ऑफ द अर्थ का उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होना चाहिए. बट वैसा नहीं होता. क्यों? ये समझो मैं थोड़ा अंदर आ गया. ओके, समझो मैं 1 किलोमीटर अंदर आ गया. 1 किलोमीटर डीप गड्ढा खोद दिया मैंने और मैं अंदर आया 1 किलोमीटर. तो अभी मेरे नीचे जितना अर्थ है वो कम हो गया, राइट? क्योंकि अभी मेरे पीछे भी थोड़ा अर्थ है. तो पूरा का पूरा अर्थ का जो मास है वो मुझे नहीं खींच रहा है. मेरे नीचे जो अर्थ का मास है सिर्फ उतना ही खींच रहा है. जैसे मैं 1 किलोमीटर नीचे आऊंगा तो मेरे ऊपर भी तो थोड़ा मास आ गया अर्थ का. तो वो मास अभी मुझे नीचे नहीं खींच रहा, वो मास मुझे ऊपर खींच रहा है अभी. ओके. तो सिर्फ मेरे नीचे जितना अर्थ का मास है वही मुझे नीचे खींचेगा, सेंटर की तरफ खींचेगा. तो जैसे तुम नीचे जा रहे हो मास भी कम हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पैरों के नीचे कितना मास है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मास अभी तुम्हारे ऊपर जा रहा है जैसे तुम नीचे जा रहे हो. तो इसकी वजह से क्या होने वाला है? It means that the value of capital M, mass of Earth, to be used in equation 5 also decreases. Okay, तो तुम लोग का r कम हो गया, radius of the Earth या फिर the distance between the object and the center of the Earth कम हो गया, बट उसके साथ साथ मास भी कम हो गया. मास कौन सा कंसिडर करोगे? तुम्हारे पैरों के नीचे जितना मास है उतना ही कंसिडर करोगे. तुम्हारे ऊपर कितना मास है वो कंसिडर नहीं करोगे, राइट? इसलिए r भी कम हो रहा है और m भी कम हो रहा है. इसकी वजह से जो कंबाइंड इफेक्ट है उससे क्या होता है? as a combined result of the change in R and M. Okay, R भी छोटा हो जाएगा, M भी छोटा हो जाएगा. दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ. इसकी वजह से वैल्यू ऑफ G कम हो जाता है. ओके. सो अगर तुम सरफेस के ऊपर जाओगे, हाइट इंक्रीज करोगे, वैल्यू ऑफ G कम होने वाला है. तुम सरफेस के नीचे जाओगे, अंदर जाओगे, फिर भी वैल्यू ऑफ G कम होने वाला है. तो मैक्सिमम कहाँ पे है? सरफेस पे मैक्सिमम होता है. ऊपर जाओ तो कम हो जाएगा एक्सेलरेशन, नीचे भी जाओगे तो कम हो जाएगा acceleration. That also you need to remember. So that's the variation of G with respect to depth. Okay, तुम कितना deep जाओगे उससे क्या change होगा acceleration में. And the last point here is every planet and satellite has different mass and radius. हर planet का, हर satellite का अलग mass होगा, अलग radius होगा. Hence according to equation 6, okay, equation 6 में यहाँ पे small r, यहाँ पे capital R था. Okay, capital R क्या था? Radius of Earth. So according to equation 6, the values of G's on that surface are different. उनका जो G का वैल्यू होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा, राइट? क्योंकि उनका मास अलग है और उनका रेडियस भी अलग है, अलग प्लैनेट्स का, अलग सैटेलाइट्स का. On the moon it is about 1/6 the value of Earth. Okay, तो अगर समझो अर्थ पे G का वैल्यू क्या है? 9.8. तो मून पे वैल्यू क्या होगा? 1/6 ऑफ 9.8. तो 9.8 डिवाइड बाय 6 वो वैल्यू होगा acceleration due to moon का, not acceleration due to earth. acceleration due to moon वो 9.8 divided by 6 होगा. As a result, using the same amount of force, we can jump 6 times higher on the moon as compared to the earth. क्योंकि वहां पे value of G 6 times कम है. तो यहाँ पे अगर समझो मैं कूद के 1 मीटर ऊंचा कूद सकता हूँ, तो अर्थ पे मैं सेम फोर्स के साथ 6 मीटर ऊंचा कूद सकता हूँ, क्योंकि उसका वैल्यू ऑफ जी कम है. इफ यू हैव सीन द वीडियोज ऑफ मार्स लैंडिंग, जो लोग मून पे लैंड हो चुके हैं उनका वीडियो देखिए, वो लोग कैसे घूमते हैं. तो वो लोग काफी ऊंचे ऊंचे कदम लेते हैं. ओके, सो वंस दे आर वॉकिंग वो लोग काफी ऊंचे जाते हैं. व्हाई? बिकॉज हल्का सा फोर्स भी मार देकर वो लोग ने सरफेस ऑफ मून पे, तो काफी ऊंचा फ्लाई करना शुरू हो जाते हैं. ओके, क्योंकि इनका वैल्यू ऑफ जी काफी कम है. वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून. ओके, so that is it for this learning session. Just check whether you have accomplished today's learning objectives or not. Can you explain the various phenomena using Earth's gravitational acceleration? You have to check for yourself. Can you explain how will the value of G change if I go to the poles? What will happen to the value of G if I come to the equator? What will happen to the value of G if I increase my height? What will happen to the value of G if I go inside the Earth? That you should be able to answer. If yes, then you have accomplished today's second learning objective. Okay, and you should also be able to explain कि वैसा क्यों हो रहा है. अगर पोल्स पे जाके वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इक्वेटर पे कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है. यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट एज वेल. ओके, so that is it for this learning session. I hope you enjoyed this.
there were many concepts, there were many situations that where you had to think about what will happen, and I think that's a lot of fun to theoretically think about principles of gravity and apply it in our thought experiments. I think that's a lot of fun. I hope you also enjoyed, and we'll see each other in the next learning session. Till then, bye and